Really a great privilege for all of us to come here and spend this time together with people almost around the same age group. I think a lot of you are much younger to me, but I'm very happy to see all of you. आप सब यहाँ पर आए, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूँ. Once again, a very good morning. एंड फॉर दोज हु डोंट नो मी, मेरा नाम रोशन आउसेप है. मैं मुंबई का ही हूँ. I did my engineering here, and then I studied in this college, and then I taught in this college for a couple of years, and it's just a joy to be back here with the college, with God's people here, and I give all glory to God. As some of you might know, कुछ समय के लिए हम इंदौर में गए थे, and it's really good to be back to आमची मुंबई. काफ़ी अननोन फेसेस भी दिख रहे हैं, उसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. And I trust that God will help us to use this time to interact with each other, make new friends, and make some lasting gospel relationships. I also want to thank Calvary Baptist Bible College and Seminary for giving me this opportunity to minister to all of you. Technically, I'm not an employee of this organization right now. जैसा मैंने कहा, हम कुछ समय के लिए बाहर गए थे, बस अभी लौटे हैं, but so glad to associate with this amazing ministry once again. Well, our first session is going to be very, very basic, okay, but very, very crucial as well. It's concerning the gospel of Jesus Christ and whether it is relevant for young people to give attention to it, right? Because हमारा crowd is a mixed crowd. I will be using both English and Hindi together, and I trust that you will be able to follow me. We're going to follow a very simple format. I will first give you a working definition of the gospel, and we're going to work with that definition. We'll try to cover some of the main aspects of the gospel of Jesus, and एक ऐसा definition जो समझने में आसान हो, जिसे हम याद कर सकते हैं, और अगर आपको नींद से भी उठाओ तो आप उसको दोहरा सकते हैं. अगर कोई आपको पूछे कि वो कौन सा सुसमाचार है जो आप प्रचार करते हैं, जिस पर आपने विश्वास किया है, the one that you believe in, you should be able to tell that, if possible, in one sentence. And then we will look at its relevance, कि gospel का भी वो उचित है भी या नहीं, कि इतना पुराना संदेश है, 2000 साल पहले बांटा गया था, अब क्या ज़रूरत है? Or if I'm already a Christian, why do I need to give attention to the gospel still? Okay? So, the first thing is, what is the gospel? Now, before I give you the definition, would anyone like to take a shot? क्या आप मुझे एक वाक्य में, एक sentence में, can you define what the gospel is? Any one of you? एक sentence में, okay? मेरा WhatsApp का DP मत देखना, क्योंकि वही मेरा definition है, all right? What is the definition of the gospel? कोई आपको पूछे सुसमाचार क्या है, तो आप क्या बताएंगे? उसके अलावा वर्ड्स क्या यूज करेंगे आप? What is the gospel? What does gospel mean? वर्ड का मतलब क्या है? सुसमाचार शब्द का अर्थ क्या है? It's a good news. Okay? All right. There are many ways to explain the gospel. Okay? There are many passages from the Bible that you can use. And in fact, many passages should be used, क्योंकि gospel के बहुत सारे पहलू हैं. There are very different aspects of the gospel that need to be explained. But if we were given only 1 minute to explain what the gospel is, and you just have one sentence to explain it, this is how I would define it. The gospel, as revealed in the Bible, is the good news that God is freely offering eternal life and the forgiveness of all the sins of anyone who puts their faith in Jesus Christ. A faith that involves repentance from sin, belief in the words and works of Jesus Christ, especially in his death and resurrection on their behalf, and exclusive submission to his lordship. हिंदी में, बाइबल में प्रकाशित की हुई सुसमाचार यह खुशखबरी है कि परमेश्वर उन सभी लोगों को मुफ्त में अनंत जीवन
और उनके सभी पापों की क्षमा प्रदान कर रहे हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। एक ऐसा विश्वास जिसके अंतर्गत वे अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह के वचनों और कार्यों पर विश्वास करते हैं, विशेष रूप से उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर जो उन लोगों के खातिर थी, और केवल यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन होते हैं। Would you please repeat this definition after me? Okay? पहले इंग्लिश पढ़ेंगे वापस, फिर से हिंदी पढ़ेंगे, बिकॉज इफ एट ऑल तीनों सेशन में आपको कुछ भी ना समझा, आई वॉन्ट दिस टू बी एच्ड इन योर मेमोरी कि भाई सुसमाचार क्या है वो समझ कर ही जाना है। ऑलराइट, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। द गॉस्पेल as revealed in the Bible is the good news that God is freely offering eternal life and the forgiveness of all the sins of anyone who puts their faith in Jesus Christ. A faith that involves repentance from sin, belief in the words and works of Jesus Christ, especially in his death and resurrection on their behalf, and exclusive submission to his lordship. हिंदी में भी पढ़ते हैं। बाइबल में प्रकाशित की हुई सुसमाचार यह खुशखबरी है कि परमेश्वर उन सभी लोगों को मुफ्त में अनंत जीवन और उनके सभी पापों की क्षमा प्रदान कर रहे हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। एक ऐसा विश्वास जिसके अंतर्गत वे अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह के वचनों और कार्यों पर विश्वास करते हैं, विशेष रूप से उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर जो उन लोगों के खातिर थी, और केवल यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन होते हैं। All right, so we are going to focus on the key elements of this definition, which are in bold and underlined, and we'll try to flesh out what this sentence is actually saying. All right, firstly, the gospel is a revelation found in the Bible. ये कहीं बाहर से नहीं आया है, and it's found only in the Bible. और कोई भी faith system नहीं है that can offer a message as unique as this message of the gospel. Secondly, by definition, it's good news. ये एक शुभ संदेश है, ये एक खुशखबरी है। Now, इस खबर की जो खुशी की बात है, the goodness of the message can be understood only if we understand what's the bad news. Okay, the bad news is this, that all of us are guilty before God as sinners. हम सब परमेश्वर के सामने दोषी ठहराए गए हैं। हम सब ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, उनके वचनों का उल्लंघन किया है। And God hates sin. उनको पाप से सख्त नफरत है, and he will judge every sin, right? यानी कि every single person on the face of this planet is on his way to hell, is on his way to judgment. Now biblically there are two kinds of sinners. दो प्रकार के पापी होते हैं, एक यहूदी और एक जो यहूदी नहीं है, यानी कि हम सब अन्य जाति के लोग। This is Paul's way of just capturing all possible people. And modern terms में, आज के लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड है इसमें दो प्रकार के पापी हैं, एक जो चर्च जाते हैं और एक जो चर्च
नहीं जाते हैं और दोनों भी नरक की ओर जा रहे हैं। अब जिस अवस्था में, जिस पाप की अवस्था में वो पैदा हुए हैं, द वे दे आर लिविंग देयर लाइव्स, दे आर बाउंड टू इटर्नल डैम्नेशन। अब आप सोचिए, कैन गॉड एक्सेप्ट सिनर्स इनटू हेवन आफ्टर दे डाई? सी, हेवन इज अ परफेक्ट प्लेस। और आप सोचिए, अगर आपको हेवन में आमंत्रित किया जाए तो विल हेवन कंटिन्यू टू रिमेन परफेक्ट? नो. सो गॉड cannot do that. God cannot take in sinners into his presence. It's against his nature, it's against his character. And perhaps कोई बोले, लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है, he is so loving, he is so merciful, वो एंड में जाके माफ कर देंगे, he will forgive everyone. But remember, God cannot overlook sin. जब वो अपना प्रेम दिखाते हैं तो वो अपने धार्मिकता को भूल नहीं सकते. He cannot overlook justice. क्या आप ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं कि जब कोई चीज गलत होता है सब उसे इग्नोर करते हैं? डू यू वॉन्ट अ गॉड लाइक दैट, हु डज नॉट एक्ट जस्टली, जो न्याय नहीं करते? नो, गॉड इज ए राइचियस एंड जस्ट गॉड, एंड एवरी, not a single sin, transgression or violation or rebellion will go unpunished. हर एक चीज का वो जवाब लेने वाले हैं. That's the kind of God we have. And all of us will have to stand before Jesus Christ, जिसको परमेश्वर ने स्वयं जज के रूप में नियुक्त किया गया है. Right? Can someone read for us Acts 17:30-31? प्रेरितों के काम 17:30 से 31. So having overlooked the times of ignorance, God is now declaring everyone to repent. Right? Can someone read it? Acts 17:30-31. राइट. सो पूरी दुनिया को बताया गया है कि उनका न्याय कौन करने वाला है. वो है यीशु मसीह. और परमेश्वर ने प्रमाण कैसे दिया? उसे मरे हुए में से जिला के. गॉड हैज रेजरेक्टेड जीसस एंड टोल्ड एवरीवन दैट दिस इज द जज. एंड सो व्हेन वी स्टैंड बिफोर दैट जज, एंड ऑल आवर डीड्स एंड ऑल आवर वर्ड्स एंड ऑल आवर थॉट्स, ये सब को परखा जाएगा. डू एनी ऑफ अस हैव एनी चांस to pass it, to pass that exam, to escape that judgment? Well, we actually do. एक तरीका है कि इस न्याय से बच सकते हैं. And that brings us to the next point, कि परमेश्वर तरीका निकालते हैं. God is the author of this gospel. That's the beauty of Christianity, कि जिसके खिलाफ हमने पाप किया है वही रास्ता दे रहा है कि कैसे आप मेरे प्रकोप से बच सकते हैं. हाउ यू कैन एस्केप माई जजमेंट. तो ये स्वर्ग में जाने के लिए हमको कौन सा दाम चुकाना पड़ेगा? वॉट डू वी हैव टू पे? एब्सोल्युटली नथिंग. दैट्स द सेकेंड थिंग दैट्स गुड अबाउट इट. इट्स फ्री. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. यू डोंट हैव टू बी एनीथिंग. यू डोंट हैव टू अकम्प्लिश एनीथिंग. परमेश्वर जो ये ऑफर दे रहे हैं वो बिल्कुल ही मुफ्त है. एंड वॉट इज ही ऑफरिंग? ही इज ऑफरिंग इटर्नल लाइफ. नाउ व्हाट इज इटर्नल लाइफ? इटर्नल लाइफ जस्ट डजंट मीन नेवर एंडिंग लाइफ या नेवर एंडिंग एग्जिस्टेंस. अनंत काल का जीवन सिर्फ ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, बिकॉज दैट्स ट्रू ऑफ हेल एज वेल. क्योंकि हेल में भी कोई भस्म नहीं होने वाला है. नरक में जो लोग भी होंगे वो हमेशा के लिए रहेंगे. सो इटर्नल लाइफ कैन नॉट जस्ट मीन कि आप हमेशा के लिए जीवित है. वॉट इटर्नल लाइफ मीन्स इज possessing the very life of God. It's enjoying His presence for eternity. परमेश्वर का जो अनंत काल का जीवन दे रहे हैं उसका मतलब है कि आप में
परमेश्वर का जीवन दिया गया है और आप हमेशा उनके साथ उनकी महिमा में रहेंगे। इट इज जॉय एंड सेटिस्फैक्शन दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस। ये परमेश्वर दे रहे हैं। साथ ही साथ परमेश्वर फ्रीली और क्या दे रहे हैं? इज गिविंग यू फॉरगिवनेस, आपको माफी दे रहे हैं। ही इज ऑफरिंग टू कवर ऑल योर सिंस। ही इज ऑफरिंग टू पे द पेनल्टी ऑफ इट। सारे पाप का वेतन भी भरने को तैयार है। आपके ऊपर जो कर्ज लगा है उसको छुड़ाने के लिए ही इज विलिंग टू डू इट। अब कितने पाप माफ करेंगे वो? हाउ मेनी सिंस इज ही विलिंग टू फॉरगिव? ऑल द सिंस दैट यू कमिटेड इन द पास्ट, जो वर्तमान में किए हो या आज भी कर रहे हो, एंड जो भविष्य में करने वाले हो। ही इज ऑफरिंग टू कवर ऑल ऑफ दैट। ही इज ऑफरिंग टू फॉरगिव ऑल ऑफ दैट। दैट्स सम रियली गुड न्यूज, राइट? शायद ये कुछ लोग के लिए ही एप्लीकेबल होगा, कुछ स्पेशल लोग को ही ये मिलने वाला है। नॉट रियली। दिस ऑफर इज ओपन फॉर ऑल। इट्स एनीवन। परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। वो जाति, कलर, लैंग्वेज, इंटेलेक्ट के ऊपर ही विल नेवर मेक डिस्टिंक्शंस। ही इज गिविंग दिस ऑफर टू एवरीवन। Why is he giving this offer to everyone? Anyone? परमेश्वर ये मुफ्त का ऑफर सबको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सब एक ही कैटेगरी के हैं। रोमन्स 3:23, who can quote from memory? रोमी 3:33, 21-22 में क्या लिखा है? For all have sinned and fallen short of the glory of God. So जब पौलुस सुसमाचार बांट रहा है, वो ये बता रहा है, ये जो सुसमाचार है ये सबके लिए लागू है, क्योंकि सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। सब पापी है और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हुए हैं। Every single person on the face of this earth is given a chance. सबको परमेश्वर ये ऑफर दे रहे हैं, लेकिन ये पाने के लिए एक कंडीशन बस मीट करना है। यू हैव टू मीट जस्ट वन कंडीशन। दैट कंडीशन इज फेथ। फेथ इन जीसस क्राइस्ट। समवन रीड फॉर मी गलेशियंस 2:16। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 16वीं आयत। राइट, सो हमारे कर्मों के द्वारा हम कभी भी परमेश्वर के सामने सिद्ध या धर्मी नहीं ठहर सकते। इट्स ओनली बाय पुटिंग आवर फेथ इन जीसस दैट गॉड डिक्लेयर्स अस क्लीन, दैट गॉड डिक्लेयर्स अस फॉरगिवन, गॉड डिक्लेयर्स अस राइचस। सो दिस होल गॉस्पेल इट रेस्ट्स ऑन वन पर्सन। एक ही व्यक्ति के ऊपर ये खड़ा है और वो व्यक्ति है हमारे प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने कहा, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। यूहन्ना 14:6। बट ये जो फेथ है, द फेथ दैट इज इन जीसस, इट कवर्स 3 एस्पेक्ट्स। इसके 3 पहलू है। नंबर 1 इज रिपेंटेंस। नाउ कोई बता सकता है रिपेंट का मतलब क्या है? अब मैं हिंदी बोलूंगा तो डायरेक्टली उसमें मतलब आ जाती है, राइट? रिपेंट शब्द का मतलब क्या है? ओके, बेसिक मीनिंग सी, say sorry. No, that's apologizing. What does repent mean? Change your mind. अपना मन बदलो। हिंदी में क्या शब्द है रिपेंटेंस का? मन फिराव। अपने मन को बदल दो, अपनी दिशा को 180 डिग्रीज टर्न कर दो। सो किस बारे में मन फिराना है? चेंज योर व्यू अबाउट गॉड, चेंज योर व्यू अबाउट जीसस क्राइस्ट। पाप को जिस तरह सोचते थे वो मन बदल दो। अपने जीवन का की पूरी कोर्स को बदल दो।
That's what Peter proclaimed, right? जब डे ऑफ पेंटिकोस्ट में पवित्र आत्मा उंडेला गया एंड जो विश्वासी थे वो अन्य भाषा में बात कर रहे थे, आजू बाजू जो लोग थे वो सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, एंड फिर पतरस प्रचार करता है, ही स्टार्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट जीसस एंड देन ही गिव्स द कमांड. जब वो लोग पूछते हैं ठीक है अभी हम क्या करें, हमने तो यीशु मसीह को क्रूस पर टंगा दिया, व्हाट शैल वी डू ब्रदर्स? एंड देन व्हाट डज पीटर से? रिपेंट and be baptized each one of you in the name of Jesus and you will receive forgiveness. Right? So that's the first thing, that the first criterion that we need to meet, कि हमें मन फिराव करना है. The second thing is to actually believe in the words and works of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया और जो कुछ भी उन्होंने कृत्य किए, right? He did miracles, he performed signs that all were pointing to who he is. उन चीजों पर विश्वास करना है. You must believe that Jesus is the Son of God, कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और वही वायदा किया हुआ मसीहा है. You have to believe that he is the only source of eternal life. उनके बगैर और कोई तरीका नहीं है परमेश्वर के प्रकोप से बचने का. There's no other way to get saved, right? Acts 4:12. Someone read that for me. प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वीं आयत. आकाश के नीचे लोगों के बीच में और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, केवल यीशु मसीह के द्वारा. राइट? व्हाट एल्स डू यू हैव टू बिलीव? यू हैव टू बिलीव दैट द डेथ दैट ही डाइड, जो बलिदान उन्होंने क्रूस पर किया, दैट इज सफिशिएंटली, इट हैज सैटिस्फाइड गॉड्स एंगर. परमेश्वर का पाप और पापियों के प्रति जो प्रकोप था, जो गुस्सा था, वो यीशु मसीह ने शांत कर दिया है. एंड उनके पुनरुत्थान के द्वारा अब हम धर्मी ठहराए गए हैं. जो भी पनिशमेंट हमारे लिए था वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है. सो अभी जब परमेश्वर पापियों को स्वर्ग में लेते हैं तो वो जस्ट है, क्योंकि उनका जो पेनल्टी है वो किसी और ने भर दिया है. तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर चीटिंग कर रहे हैं कि इसको क्यों लिया इसको नहीं. नहीं, इसके बदले किसी और ने भरपाई की है. दैट्स द उस प्रकार का परमेश्वर ये कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. हम पापियों के पापों को प्रभु यीशु मसीह पर डालकर उनकी धार्मिकता वो हमें दे रहे हैं. सो ही इज बोथ जस्ट एंड द जस्टिफायर ऑफ द वन हु पुट्स हिज फेथ इन जीसस. रोमी में पौलुस लिखता है. The third aspect of belief is something that's often neglected, and that is submission. Exclusive submission to his lordship. ये जो फ्री ऑफर है ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और केवल यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करते हैं. राइट? व्हाट डज रोमन्स 10:9 से? रोमन्स 10:9. If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Full confidence से बता रहे हैं. But then you have to confess him as Lord. अब Lord का मतलब क्या है? प्रभु का मतलब क्या है? Means master, मेरा मालिक, my owner. That means God is requiring that you put yourself completely under the ownership of Jesus. Right? अब से मैं उसका और वो मेरा. That's the kind of thing he's expecting. In fact, if you read the Bible uses the word slave for people who have believed in Jesus. ये लोग जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो उनके गुलाम बन जाते हैं. And गुलाम बनने के द्वारा क्या हो रहा है? अब वो यीशु मसीह की सुनते हैं. Whatever Jesus tells them to do, they do. Whatever Jesus tells them not to do, they don't do that. It's Jesus who's running the show. यीशु मसीह आपके जीवन को चला रहे हैं. How does he do that? कैसे पता चलेगा यीशु मसीह क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं?
So belief in Jesus is starting a relationship with this book. क्योंकि इस किताब के द्वारा अब यीशु मसीह मुझे मेरे जीवन को चलाएंगे. He runs my life and he tells me his will through his word, the Bible. And so if you meet all these three criteria, all collectively called as putting faith in Jesus, the Bible gives you a guarantee that you will be saved. जो आने वाला न्याय है उससे आप बच जाएंगे. जो आने वाला समय है when God is going to pour out his wrath on all wickedness, you will be safe if you do this, if you trust in Jesus. परमेश्वर आपके सभी पापों को क्षमा करेंगे. He will never bring it back to his memory, although he can. ऐसा नहीं कि परमेश्वर भुलक्कड़ हैं, he cannot remember your sins. Of course he can. He chooses not to remember it. परमेश्वर फिर से कभी उसका जिक्र नहीं करेंगे, because all of that is covered by Christ's blood. When you believe in this gospel, God gives you assurance कि जब आपकी मृत्यु होगी, when you die, immediately you will be in his presence. There's not a single moment that you will be separated from him. ऐसा एक भी क्षण नहीं होगा कि आप परमेश्वर से जुदा होंगे. Death cannot stop your relationship with God if you have believed in the gospel of Jesus. परमेश्वर आपको उनके राज्य के भागी बनाएंगे. He makes you a child of his own. आपको लेपालक पुत्र करके लिया गया है. You are adopted by him. आपको धर्मी ठहराया गया है. And all of this God is doing out of his love for the world, right? This we don't have to read this. We all know John 3:16. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र हमें दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, पर वो अनंत जीवन पाए. This is all God doing out of his love and purely by grace. इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, right? Ephesians 2:8 and 9 कोई पढ़िए. Ephesians 2:8 and 9. For we are, sorry. Oh, sorry, that was 10. Oh, sorry. Did you read 9 as well? Right. So, परमेश्वर जो उद्धार हमें ऑफर कर रहे हैं, the salvation that he is offering us, it's purely by grace. What does grace mean? Anyone? अनुग्रह का मतलब क्या है? 2 words. Unmerited favor. एक ऐसा फेवर क्या है हिंदी में? एहसान. हिंदी और एक ऐसा एहसान जिसके हम लायक नहीं, जो हमने अचीव नहीं किया है, ये परमेश्वर अपनी ओर से हमें दे रहे हैं ताकि सारी महिमा उसको मिले. कोई भी यहाँ पर जो उद्धार पाया कभी ना बोले कि मैंने कुछ किया इसीलिए मैं माफी पाया हूं या मैं उद्धार पाया हूं या मैं परमेश्वर का पुत्र या पुत्री हूं. नहीं, ये परमेश्वर की ओर से. So this is the gospel, my dear ones. Now, the question is it relevant today? ये बार बार बताना, बार बार प्रचार करना, बार बार अपने आप को याद दिलाना, इसकी ज़रूरत है या नहीं? कितनी पुरानी किताब है ये, राइट? 2000 साल पुरानी तो न्यू टेस्टमेंट है, ओल्ड टेस्टमेंट और पुरानी है. क्यों अब तक इतने युग आगे आगे बढ़ रहा है, हमको चीज़ें अपडेट करनी चाहिए, राइट? क्यों हम इतनी पुरानी संदेश को बार बार दोहरा रहे हैं? Why are we preaching a gospel that is so old? Well, many people think that the gospel should be preached only in evangelistic meetings, जहाँ पर हम पहली बार जो मसीह के बारे में सुनने आने वाले हैं उनको जब बताना होता है, केवल तभी सुसमाचार बांटना चाहिए. That's so far from the truth. In fact, the gospel should be preached regularly in the church, and if possible, हर सभा में at least एक बार तो सुसमाचार देना चाहिए. And खास करके हम नौजवानों के लिए तो बहुत ज़रूरी है. Let's see, why do we need to repeatedly proclaim this gospel and why is it still relevant today? Firstly, because all youngsters who have not believed, they need to hear this.
First obvious reason is because many have not yet heard. अपने दोस्तों के बारे में सोचिए. Think about your college friends. Think about people in your locality who have never heard of anything from the Bible. Do they not need to hear this? Of course they do. And that's why we must keep proclaiming it. And then there are people who have heard but have shut themselves. अपने आप अपने कानों को उन्होंने बंद कर दिया. अभी भी परमेश्वर के सामने मुट्ठियां बंद कर रहे हैं and बलवा कर रहे हैं. They are rebelling against God. Well, उन्होंने एक बार सुना, दो बार सुना, क्या उन्हें वापस सुनाना है? Yes or no? आप सोचिए, क्या पहली बार जब आपको सुसमाचार सुनाया गया तभी के तभी आप विश्वासी बन गए थे? हम पर भी लोगों ने दया दिखाई. They were repeatedly telling us. And by God's grace, perhaps after the 50th or the 100th time, we understood. These people also need to be told again and again. भले ही वो मना कर रहे हैं, भले ही वो बोल रहे हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. No, we have to constantly tell them. Because we don't know when God shows His mercy on their lives. Right? Third reason, many assume that they are believers. That's the unfortunate reality among many young people. क्योंकि हम सब कलीसिया में पैदा हुए, कलीसिया में पले बड़े हैं, some of us are very active in the church, doesn't mean that we are part of God's family. You may be a part of a church, doesn't mean that you're part of God's actual family. If you want to be part of God's actual family, you must believe the gospel. Because without that, you are an outsider. आपका नाम रजिस्टर में होगा, but in God's eyes, you are an outsider because you have not believed. That's the one thing that God is expecting from you. And after that, there is this very dangerous category कि इस शहर में, इस देश में, पूरे दुनिया में, there are many false gospels spreading, right? False gospels like easy believism, prosperity gospel, mysticism, moralist gospel, legalist gospel, and वगैरह वगैरह. इतने सारे इसके varieties निकले हैं, all deviating from the true biblical gospel. And unfortunately, ये जो गलत शिक्षाएं हैं, ये सच्चे सुसमाचार से ज़्यादा फैलते हैं. And so it's our responsibility to keep telling people, keep bringing back people back to the Bible, कि Bible ये सुसमाचार सुना रहा है, ये सिखा रहा है, and that's what we have to preach. Okay, so it's pretty clear कि unbelievers definitely need to hear the gospel. What about believers? All of you who have believed in Jesus, जिन्होंने सुन लिया सुसमाचार, विश्वास कर लिया, आप ऑलरेडी परमेश्वर के संतान बन गए हो, आपका भविष्य सुरक्षित है, सब रेडी है. क्या आपको सुनने की जरूरत है? The answer is yes. Believers are equally needing the gospel every single day. Why? Firstly, because believers sin. आप में से कौन है जो विश्वासी है और पाप में नहीं फंसता, पाप में नहीं गिरता? Some of us are struggling with sin. And what can rescue us from that sin? It's only the gospel of Jesus. परमेश्वर का सुसमाचार नहीं आपको पहली बार छुटकारा दिया और आज भी वही सुसमाचार आपको छुटकारा देगा. दूसरी बात, Christian young people need to hear the gospel because many of us struggle with assurance. I think हम सब में से हर एक के जीवन में ऐसा ना ऐसा कभी तो एक क्षण आया होगा जब हमें थोड़ा तो संकोच हुआ होगा. We would have doubted, am I really saved? Am I really a child of God? यार बाइबल क्या पूछ रहा है करने को, मेरा जीवन देखो यार, there's no कुछ परफेक्शन ही नहीं है, क्या सिर्फ विश्वास करना काफी है? These doubts keep coming in every believer's life. And that's why believers need to be constantly told, yes, faith is the only thing required. परमेश्वर आपको आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्वर्ग में नहीं लाते हैं, आपके विश्वास के बेसिस में लाते हैं. Right? So believers struggle with assurance. They need to be told कि आप पाप में गिर भी गए हो, forgiveness is still available. आप अभी भी मन फिराव कर सकते हैं. You can still repent and believe and trust
that God will forgive. He will wipe away all your transgressions. The third reason why believers need to hear is because believers are susceptible to deviate from it. And this can happen very quickly, like it happened with which people? वो कौन से लोग थे जो बहुत ही जल्दी सुसमाचार से भटक गए? फ्रॉम द बाइबल, ओके? मैं मुंबई का कोई चर्च के बारे में नहीं पूछ रहा, राइट? इतना सा सवाल. समन, which people जो एक बहुत ही अच्छा प्रचारक गया उनके पास, सुसमाचार सुनाया, एंड देन उसको उनको लिखना पड़ा, अरे क्या है तुम लोग इतने जल्दी भूल गए, राइट? हु इज दैट? हु आर दोस पीपल? Is the church in Galatia, the churches in Galatia. Paul writes to them, I'm surprised that you have so quickly forsaken the gospel. Right? So, ऐसा हो सकता है कि मसीही लोग जो विश्वास किए हैं वो गॉस्पेल के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं कि विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं. राइट? मेरे चर्च में सबसे पहले आने से या ज्यादा काम करने से मैं धर्मी नहीं ठहरता, मैं विश्वास से धर्मी ठहरता हूं. Right? And so we can so quickly deviate from it. Look at Hebrews 4, 1-7. ठीक है? इब्रानी, the whole letter is a letter full of warnings. ठीक है? लेखक अपने श्रोतागण को बहुत सारी चेतावनियां देता है. And look at what he writes. Let me read this for you. Hebrews 4, chapter 4, verse 1. Therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. For the good news came to us just as to them, but the message they heard did not benefit them because they were not united by faith with those who listened. For we who have believed enter that rest, as he said. Vagara, vagara. Okay? Come to verse 6. Since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience, again he appoints a certain day, today, saying through David so long after, in the words already quoted, today if you hear his voice, do not harden your hearts. There are many people who start very well, very excited for Jesus. ठीक है? बहुत जोश के साथ उनका विश्वास शुरू होता है. Then unfortunately, as the days progress, वो ठंडे हो जाते हैं because they are not standing on the gospel. इसीलिए believers need to be constantly told कि भाई फेथ से दूर मत हटो, अपने विश्वास में डट के खड़े रहो. And then fourthly, it often happens that believers only focus on the free part. ठीक है, freely मिला. But there is a responsibility on us. The gospel demands certain things. What does the gospel demand? Anyone? परमेश्वर जब सुसमाचार देते हैं तो उनके अनुयायियों से, उनके विश्वासियों से क्या अपेक्षा रखते हैं? Right? Anyone? If anyone wants to come after me, he must deny himself, take up the cross, and follow me. God expects a life of consecration. जो पूरी तरह से उनको समर्पित That is something believers need to constantly be reminded of. सुसमाचार याद रखो, सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताना है. That you would walk worthy of the gospel. That's what Paul said. Finally, believers are required to effectively proclaim it. हम सबको शिक्षित होना है. हमने जो सुना है अब दूसरों को राइट? अभी हमें परमेश्वर ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है कि अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझाना पड़ेगा. राइट? अब सबके सामने एक ही चीज, वैसे तो एक ही समाचार है, लेकिन उस व्यक्ति को तरीके से समझाना पड़ता है. Only one, how do you think you will be trained enough to explain it every time the situation is on? Right? So believers need to hear the gospel time and again so that we can proclaim it whenever God gives us the opportunity. Defense, the gospel is still relevant. हमको सुसमाचार की जरूरत है. आपके अंदर
जैसे लोग जो हमारे 20s 30s में है, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। एंड आई थिंक शैतान सबसे ज़्यादा हमारी उम्र के लोगों पर ही काम करता है, बिकॉज वी नोज दैट वी आर वेरी वल्नरेबल। हम गिरने के लिए बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, विच इज़ वाई वी नीड प्रोटेक्शन, एंड द प्रोटेक्शन इज गिवन बाय द शेपर्ड। हमेशा अपने लोगों को संभाले रखें, बट उसके लिए आपको उनका लोग बनना पड़ेगा, उनके जन बनने पड़ेंगे। दैट विल हैपन ओनली इफ यू बिलीव इन द गॉस्पेल। वेल, इफ समवन इज वंडरिंग इतना पुराना चीज अभी भी क्यों चालू रखना है, थिंक अबाउट salvation। परमेश्वर ने आपका उद्धार का निर्णय कब लिया था? When did God decide to save you? When did God decide to save his people? उनकी योजना कब बनी थी? Before the foundations of the world, before time began। तो ऐसी चीज जो परमेश्वर ने तब डिसाइड की जब समय था ही नहीं, तो समय कितना भी आगे बढ़े क्या फर्क पड़ता है? दिस इज एन इटर्नल मैसेज। कितना भी जीवन आगे जाने दो, कितने भी युग आने दो, कौन सा भी सरकार आने दो, कोई भी लहर आने दो, दिस गॉस्पेल विल नेवर चेंज। बुक्स नीड न्यू एडिशंस, द बाइबल डजंट नीड अ न्यू एडिशन। द बाइबल remains the same. What does Peter say when he quotes Isaiah? All flesh is like grass, and all its glory like the flower of the grass. The grass withers, the flower fades away, but the word of the Lord abides forever. This Bible will remain this Bible forever, and the message that it gives will stay the same forever, and it will be relevant forever. In fact, it's getting more and more relevant. Why? Because we are nearing the end. ये 2000 साल पहले जब दिया था, तब प्रचारक बोल रहे थे यीशु मसीह आने वाला है, मन फिराव करो। अब हम यीशु मसीह के आने के 2000 साल और नजदीक आ गए हैं। We are so close to judgment, and that means the gospel is all the more relevant now as we wait for our Savior to come back. But unfortunately, not everyone is very excited of this story. Not everyone is excited of this message. कुछ लोग को ये मूर्खता लगती है, कुछ लोग के लिए ये ठोकर का कारण है, it's a stumbling block. But as Paul says to the Corinthians, the word of the cross is a powerful message for those who believe. It's wisdom from God. ये परमेश्वर की बुद्धि है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है कि हम जैसे लोग को वो माफ करते हैं, हम जैसे लोगों को he gives eternal life. The same good news that's a joyous news becomes a terrifying message if you disregard it. Right? Look at what John writes in 3:36. I'm just ending in 2 minutes. John 36. Yohanna 30. राइट, सो जो उनके पुत्र पर विश्वास करेगा उनको जीवन मिलेगा, लेकिन जो उनके पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा वो जीवन कभी नहीं देख पाएगा। बट क्या है उस पर, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस लाइफ? नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, दैट द wrath of God will be poured on him. No, आज के दिन में if you are rejecting Christ, God's wrath is hovering over your head. All he needs is to just turn on the knob. And the day he comes back, the day his son comes back, all of that will be poured. Just because you were given such a great news and you said no. So I have just one simple question for all of you. Have you responded to the gospel? If not, what are you waiting for? Look at what God has done for you. Look at what He is freely offering. आप नौजवान हैं इसलिए you cannot assume कि आपके पास बहुत समय है, बल्कि
what guarantee do you have that you will see, that you will survive till lunch? No guarantee. Today is the day of salvation. Now is the action. Look at what is doing for you. Look at what God is doing for you. Why would you still reject him? अभी भी आप क्यों उनके खिलाफ बलवा करोगे? माफी उपलब्ध है, सुलह उपलब्ध है, लेपालक होना उपलब्ध है, अडॉप्शन इज अवेलेबल, इटर्नल लाइफ इज अवेलेबल. Just come and believe in this marvelous, gracious gospel of Jesus. Let's pray. हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और हमें अवसर दिया कि हम एक और बार आपके पुत्र के शुभ संदेश को सुन पाए. प्रभु, इसी संदेश पर हमने अपने पूरे जीवन को सौंपा है. हमारी बुनियाद इसी पर है. जितनों ने भी हम में से विश्वास किया है, हमें पता है कि आज हमारे पास जो भी आत्मिक आशीषें हैं स्वर्गीय भंडार में, वो सब यीशु मसीह के द्वारा इस सुसमाचार के वजह से आई है. प्रभु, हम में से जितनों ने भी विश्वास किया, हम धन्यवाद देते हैं कि संसार के निर्मिति के पहले ही हम आपके ख्यालों में थे, कि आपने हमारे बारे में सोचा और आपने ये निर्णय लिया कि आप हम पर अपना असीम अनुग्रह उंडेलेंगे. हम धन्यवाद देते हैं उस क्षण के लिए जब आपने अपने सुसमाचार को हमारे सामने प्रकट किया. उन सारे प्रचारकों के लिए, उन सारे शिक्षकों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में मेहनत किया और हमें आपके वचन बांटे, और आपके अनुग्रह से प्रभु हमने उसे समझा, उसे स्वीकारा. धन्यवाद देते हैं. हमें मदद कीजिए कि हम कभी ना भूलें कि हमें हर क्षण आपके सुसमाचार की ज़रूरत है. प्रभु, आज भी हम पाप से जूझते हैं और उससे छुटकारा पाने का केवल एकमात्र तरीका आप पर और आपके पुत्र पर करना है. प्रभु, अगर हमारे बीच में ऐसा कोई है जिसने अब तक आपको जाना नहीं है, अब तक आपको स्वीकारा नहीं है, अब तक सुनकर भी अनसुना कर रहा है, तो हम मांगते हैं कि आप उन पर दया दिखाएं. उन्हें मदद कीजिए कि वो अपने पापों को स्वीकार करें, उसे कबूल करें, उससे मन फिराव करें, इस समाचार को समझे, उस पर विश्वास करें और पूर्ण रीति से अपने आप को आपके हाथों में सौंप दें. प्रभु, अगर हमारे बीच में ऐसा कोई है जो अब तक श्योर नहीं है कि वो किस छोर पर है, वो अब तक उसके मन में डाउट्स है, शंका है कि क्या वो मसीह का है, तो हम मांगते हैं कि आपके वचनों के द्वारा आप उसको सही मायने में विश्वास किया तो उसे वो अश्योरेंस दीजिए, वो आत्मविश्वास दीजिए, वो आश्वासन दीजिए कि वो सही में परमेश्वर का है और आप उनके हैं. प्रभु, मदद कीजिए कि यहाँ से जाने वाला हर एक व्यक्ति, यहाँ पर बैठने वाला, सुनने वाला हर एक व्यक्ति एक बार अपने जीवन का आकलन करे और ये जांचे कि क्या उन्होंने इस संदेश को स्वीकारा है या नहीं. प्रभु, हम केवल कह सकते हैं, कार्य आप करते हैं. आपकी आत्मा के पास ही सामर्थ है कि वो हर एक के मन को जांचे और हर एक के मन में कार्य करे. सो हे परमेश्वर की पवित्र आत्मा, आप अपना कार्य कीजिए और इस प्रचार के द्वारा और आने वाले जितने भी सेशन हैं उन सब के द्वारा आप हम सब के हृदय में कार्य कीजिए. आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं.